wonderful. These are the mountains here in the backside. करते थे पूरे ऐसे पुराने टाइम में पुराने घर ऐसे हुआ करते थे. वो देख रहे हो फिशेस. इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर. तो माउंटेन लेपर्ड भी यहाँ पे कई बार निकल आते हैं. और good morning everyone guys, welcome back to my new vlog, and you guys are watching Arun's Travelpedia and I'm your friend Arun. So this is the morning from my native place in Himachal, and you can see the background here. So it is quite wonderful. These are the mountains here in the backside. तो ये है मेरा होम टाउन, and this is my I'm standing on the roof of my house here today. So let me first quickly show you the view from my house rooftop, and here you go. तो मैं जहाँ खड़ा हूँ, this is the place which is known as Jukhala, and the village where I am in right now. This is the countryside area. These are the whole fields here, which I think you guys cannot, which you can see a little bit of, the fields after these trees here. So these are all the fields, and if you look at these mountains, तो ये सारे mountains जो हैं, these are all the Himalayan mountains here, Himalayan ranges. Or I'm not sure if if you guys can see a little bit of a bigger mountain in the backside of this particular mountain, that one. So वो सारा that region is your district Mandi, and then you cross the district Mandi and you go to Manali. So Manali is that way. Okay. Now there's a road which goes from here after the tree line, and you cross the fields there. There's a road which goes from here to here, and that is the mountains there. Those are the mountains from district Solan, और वो जैसे आप क्रॉस करोगे then you go to Shimla. So this is the route to Shimla, and that way mountain is your Manali and Kullu and Manali, right? और उस साइड को अगर हम जाएंगे, right, तो that is your धर्मशाला and all. तो ये है location, and if I quickly turn around, and you can see the mountains here at the backdrop of my house. तो ये जो आज का जो व्लॉग है बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में आई एम गोइंग टू वन ऑफ वेरी नियर बाय प्लेसेस विच इज़ जस्ट around I think 3 to 4 kilometers near my house, and that's a very nice place, and that place is called as Markandeshwar, right? So I will put the name in the video here, right, कि कैसे उसको स्पेल करते हैं. आपको कुछ चीज़ें बता के जाता हूँ कि मार्कंडेश्वर में क्या क्या है बिफोर आई स्टार्ट माई ट्रिप टू श्री मार्कंडेश्वर टेम्पल और धाम. So as I said, this is a very holy place, and it is mostly visited by the childless couples and the newly married couples. जो नए नए लोग जो शादी करके आते हैं, वो लोग यहाँ पे जाते हैं to seek the blessings of Shri Markandeshwar ji. And who was Markandeshwar? So he was a saint जो यहाँ पे आके उन्होंने meditate किया था, and he was the son of Mrikandu. So Shri Mrikandu was again a very popular saint. तो स्टोरी ये है कि जो श्री मृकांडू थे, ही वॉज चाइल्डलेस, सो ही वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा. उन्होंने लॉर्ड शिवा की पूजा की, एंड ही मेडिटेटेड हिम, एंड लॉर्ड शिवा वॉज हैप्पी विद हिज प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स. तो लॉर्ड शिवा यहाँ पे आए और उन्होंने ब्लेस किया श्री मार्कंडेश्वर को with a child. But he also said that at the age of 12, when his son will turn 12, he will die, right? So that was what Lord Shiva told Shri Mrikandu when he blessed him with a son. तो 12 साल तक मतलब वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे that his son is going to die at the age of 12 and all. तो Shri Markandeshwar was the name of the son. जब उनको पता चला कि उनके पापा क्यों ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, सो देन ही वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा ऑन द प्लेस टुडे वेयर द टेम्पल इज़. और उनका वहाँ पे एक स्टैचू भी है. देयर इज़ अ स्टैचू वेयर ही मेडिटेटेड लॉर्ड शिवा, एंड लॉर्ड शिवा वाज वेरी हैप्पी. एंड दैट वाज अ डे ऑफ बैसाखी. सो बैसाखी का जो दिन होता है वो बहुत बहुत अहम होता है. इट्स अ वेरी होली डे here in Himachal, Punjab, and in the northern part of India. So on the day of Baisakhi, Lord Shiva came and he blessed Shri Markandeshwar with a long life. तो तभी से मतलब ये प्रथा चली आ रही है. It has been since going on that any childless couple who wants a child, and newly married couples, they just go there and they worship Shri Markandeshwar ji, and they offer whatever they can, and they seek their blessings.
तो आई होप दिस इज़ रियली नाइस। एंड लोकेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो लोकेशन ये है कि श्री मार्कंडेश्वर जी इज़ अराउंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर फ्रॉम। तो ये कहाँ पड़ता है? इफ़ यू क्रॉस घाघस एंड इफ़ यू टेक द शिमला रोड, और उसके ऊपर श्री मार्कंडेश्वर जी का आपका ये टेम्पल आता है। तो इट्स वेरी पॉपुलर, और ये भी माना है, और जो दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस कि अगर कोई चार धाम करके आता है, अगर चार धाम करने के बाद अगर वो श्री मार्कंडेश्वर नहीं आया है और यहाँ पे उसने होली डिप नहीं ली है, तो उसकी चार धाम की जो यात्रा जो है, द ट्रैवल ऑफ द चार धाम्स इज़ नॉट completed if the person doesn't take a holy dip in श्री मार्कंडेश्वर। सो होली डिप मीन्स यहाँ पे एक बहुत ही एक नेचुरल स्प्रिंग है, एंड this natural spring is full of it has all medicinal values। तो ये infertility, जो skin disease जो रहती है, and उन सब चीज़ों को क्योर करता है। So it's a very holy water, it's a very holy spring, and if any of you guys have completed Char Dham and still you have not take a holy dip in Markandeshwar, so your trip is not considered to be completed. So make sure you guys come down to Sri Markandeshwar ji and you take a holy dip in a holy spring. So with that note guys, I will start the journey, and as I said, I will go by walking, so मैं पूरा एरिया भी कवर करते जाएंगे, एंड वंस वी रीच देयर आई विल टेक अ होली डिप इन द स्प्रिंग एंड देन वी विल कंक्लूड। लेट्स गो। तो दिस इज़ माय हाउस एंड वी हैव स्टार्टेड द जर्नी। सो हम लोग इधर से जाएंगे। ये सारे फील्ड्स हैं यहाँ पे, वो है मेरे फादर, माय वाइफ एंड माय किड, और ये सारे फील्ड्स हैं यहाँ पे, एंड शी इज़ एक्साइटेड टू गो। ये पूरा जंगल है यहाँ पे, और हम ये रास्ता ये वाला ले रहे हैं, एंड यू कैन सी ये जो पूरा ढेर लगा के रखा है, दिस इज़ ऑल द रेसिड्यू आफ्टर द मेज सीजन। जी रहा। तो ये पुराने घर हुआ करते थे, पूरे ऐसे पुराने टाइम में पुराने घर ऐसे हुआ करते थे, जहाँ पे ऊपर उनके जो सारी छत है पूरी स्लेट्स की हुआ करती थी। अभी तो लोगों ने मतलब बिल्कुल दे हैव रिप्लेस द स्लेट्स विद द टिन्स, यू कैन सी हेयर। और ये मेरी एक मासी का घर है यहाँ पे। रियांशी बहुत खुश है जाने के लिए। ये है पूरे गांव की गलियाँ, यहाँ से जा रहे हैं अभी हम। ये वाला विलेज हम क्रॉस करेंगे, एंड देन यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे नीचे की तरफ। जी हमारी कुल माता का मंदिर है, श्री नैना देवी का, और वो जा रही है रियांशी अपने दादाजी के साथ। सो दीज आर द एनिमल शेल्टर्स हियर। यहाँ पे सारी बफेलोस काउस वगैरह को यहाँ रखते हैं, और ये सारे काउडन केक्स हैं यहाँ पे। दिस इज़ ऑल विलेज लाइफ हियर। रोने लग गई थी बेचारी। रियांशी दौड़ रही है, वो घूमने के लिए इतनी एक्साइटेड रहती है ना, ये पूछो मत। उसको पता चलना चाहिए कहीं जा रहे हैं और वो तैयार है। लेकिन सबसे सही बात यह है कि मतलब इसको गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए घूमने के लिए, ये बिल्कुल ऐसे दौड़ते दौड़ते बिल्कुल चलने फिरने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। ये देखो, ये पूरा ओल्ड विलेज आर्किटेक्चर है, ये पूरा पुराने पत्थरों से बनता था, ये पूरा पुराने पत्थर, और पूरा जो मड ब्रिक होता था ये पूरा उससे कंस्ट्रक्टेड है पूरा। अब आजकल तो लोग मतलब बिल्कुल पक्के हाउसेस पे आ गए। गोट, रियांशी गोट गोट। अभी हम लोग उस साइड से आए हैं पीछे से, और ये पूरा प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे। ये प्राइमरी स्कूल की पूरी दीवार है यहाँ पर, और ये हम चल रहे हैं। और जो सामने जो वो जो वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हो, यह इसका नाम है वटे किशन। सो वटे किशन में ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान एक बार आए थे। तो दिस इज़ ऑल्सो अगेन वन ऑफ अ वेरी गुड होली प्लेसेस हेयर। और यहाँ पे एक टाइम इतना ज़्यादा पानी हुआ करता था, लॉट ऑफ वाटर हेयर। बट अभी तो यार पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस होल ग्लोबल वार्मिंग थिंग। तो मेरे को याद है कि जब हम लोग समर वेकेशंस में हमारी समर वेकेशंस होते थे, व्हेन वी यूज्ड टू कम, हम लोग यहाँ पे दिन भर यहाँ पे रहते थे, पूरा नहाते थे, धोते थे,
There was a lot of water. Bora pura vertigation, and I will show you if we get a chance to get in. इसको पकड़ना पड़ेगा। और ये पहुंच गए हम लोग वर्टिकेशन में। यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी हुआ करता था तो बिल्कुल यार, मतलब अभी जो पानी यहाँ देख रहे हो, दिस इज़ नॉट इवन 1/3, कुछ भी नहीं बचा है अब तो। यहाँ पे ये है, ये भी नहाने का कुंड है। यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे चप्पल अगर हम यहाँ पे हम लोग अपने स्लीपर्स वगैरह यहाँ पे खोल देंगे, शूज़ वगैरह, और इसके अंदर जाके डिप कर सकते हैं। तो यू कैन सी द फिश इज़ देयर, वो देख रहे हो फिशेस, इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर। तो ये जो अंदर वाला जो एरिया है, ये बेसिकली वुमेन के लिए बनाया गया था, सो दैट द वुमेन्स कैन टेक बाथ इनसाइड एंड द मेन कैन टेक बाथ आउटसाइड, इन द आउटसाइड एरिया वेयर यू कैन सी द वाटर एंड द टैंक। तो ये है, मैं बाहर लेके चलता हूँ आपको। ये रहा बाहर वाला टैंक। You can see how crystal clear the water is, बिल्कुल साफ पानी है, and you can see the bed of this tank, and this is all natural source of water। ये बिल्कुल natural है, this is not man filled or something, it comes from the mountain and it is pure water, and you can see the fishes there। देखो bubbles, देखिए वो bubbles का आ रहे हैं। ये पानी स्टोर होता है यहाँ पे? स्टोर नहीं होता, ये जो पानी जो यहाँ पे है, ये बेसिकली जो सामने जो वहाँ जो तो पानी देख रही है ना, वहाँ पे निकलता है, और विलेज पीपल यूज़ करते हैं उनको, मतलब ये कि आता है दिस इज़ ऑल माउंटेन वाटर। सोर्स ऐसा कुछ नहीं पता है, सोर्स मतलब सोर्स यही है कि ये ज़मीन से आता है, एंड इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम इनसाइड द माउंटेन, सो देयर इज़ नो एक्चुअल सोर्स ऑफ इट। यहाँ पर घर कहाँ से? इसके कई सारे ओपनिंग्स हो सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट डिफाइंड कि कौन सा ओपनिंग कहाँ है। वो देखो क्रैब, वो देख, वो रहा क्रैब। और यहाँ पे ना कई बार मतलब छोटे मोटे सांप भी होते हैं, जो वाटर स्नेक्स होते हैं ना, वो भी यहाँ पे। तो जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो हम लोग, तो जैसे मेरे दादाजी वगैरह ना यहाँ पे स्विम करते थे, और कई बार मतलब ऐसा होता था कि वहाँ से मतलब एक सांप निकलता था, वो स्क्रॉल करता फिर निकल जाएगा। बट दिस इज़, अब तो शायद इसमें कोई नहाता नहीं है, तो बट यू कैन सी हाउ क्लीन द वाटर इज़। सो लेट्स कंटिन्यू। अभी हम लोग को मार्कंडेश्वर जाना है, तो इट विल टेक सम टाइम। ये श्री वर्टिकेशन, तो ये है वर्टिकेशन भगवान की यहाँ स्थापना। सो दिस प्लेस बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्णा, और यहाँ पे कृष्ण भगवान एक बार आए थे। तो ये हनुमान जी की मूर्ति भी है यहाँ पे, इनके पैर छू लेते हैं। जय श्री, चलो चलते हैं अब यहाँ से। जाओ, जय करो, जय करके आ जाओ, चलो जय कर चुके हैं, एंड वी आर टेकिंग दिस स्मॉल पाथ। तो ये पूरा श्री मार्कंडेश्वर के लिए जाएगा, और हम लोग हाइक करते हुए जाएंगे श्री मार्कंडेश्वर। और अगर किसी को गाड़ी से अगर जाना है, तो एक वो कच्चा रास्ता देख सकते हो, वो गाड़ी से भी वहाँ तक मार्कंडेश्वर के लिए अब रास्ता बना दिया है। तो ये रहा श्री वर्टिकेशन। बहुत पानी हुआ करता था यहाँ पे, अब तो बिल्कुल पानी सूख चुका है। जब ये सब चीज़ें देख के मतलब इतना दुख होता है कि यार सच में ग्लोबल वार्मिंग हिट हो चुकी है, इवन इन द माउंटेन एरियाज़। मतलब ये बोल सकते हो कि कोई भी एरिया अनटच नहीं रहा है ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट से। वो कार रोड है जिसकी हम बात कर रहे थे, जब मैं बता रहा था कि अगर किसी को मार्कंडेश्वर अगर गाड़ी से जाना है, तो यहाँ से वो अपनी नीचे से गाड़ी ला सकता है, एंड दिस रोड विल गो देयर। तो पूरा विलेज एरिया है, एंड दीज आर ऑल द फील्ड्स हियर। ये पूरा सरसों लगाया हुआ है, ये सारा मस्टर्ड है, यू कैन सी द मस्टर्ड फ्लावर्स।
करते हैं इसको। तो गाइस अगर आप पहाड़ों में घूमने के लिए आ रहे हो, स्पेशली इन द एरियाज़ ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल, तो यहाँ पे आप जितना हो सके उतना वॉक करके आप एरियाज़ को कवर करो। देखो जैसे मेरे पास कार है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे टू व्हीलर भी है, बट वी चोज़ टू ट्रैक टुडे। तो ट्रैकिंग इज़ वेरी नाइस फॉर योर बॉडी एज वेल। तो जितना आप ट्रैक करोगे उतना आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, और उतना आपको रिफ्रेशिंग यहाँ पे फील होगा। द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी नाइस। तो इट्स नॉट लाइक द एटमॉस्फेयर दैट वी हैव बैक इन दिल्ली और द अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया। तो बहुत रिफ्रेशिंग होता है यहाँ पे अगर आप वॉक करते हो, एंड इट विल मेक यू फील मोर एनर्जाइज्ड इन अ वे दैट यू नो इट विल प्रोवोक यू टू कवर मोर प्लेसेस। तो अभी देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे पूरा फील्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा ये तो ये पॉलिथीन्स वगैरह यूज़ किया गया है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द स्केयर क्रोज। तो जैसे ही यहाँ पे ये हवा से चलते हैं, हवा जब चलेगी तो ये लोग साउंड करेंगे, और उसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे नहीं बैठेंगे। और ये जो पूरा आप जो खेती देख रहे हो ये पूरा गेहूँ है, दिस इज़ ऑल व्हीट। तो अभी ये पूरा लगने में कम से कम 2 से ढाई 3 महीने का टाइम लगेगा, एंड वंस दैट इज़ डन, दो व्हीट की कटाई होगी, फसल की कटाई होगी, एंड देन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ द फील्ड्स आर लेफ्ट एम्प्टी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम देते हैं फील्ड्स को री एनर्जाइज होने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट सीज़न की जो फसल होती है वो लगाई जाती है। चुन्नी के पेड़ देख रहे हैं कितने बहुत कॉस्टली होते हैं ये। चाहे वो जो फील्ड मैंने आपको दिखा रहा था जहाँ पे वो प्लास्टिक्स को यूज़ किया गया एज इन अ फॉर्म ऑफ स्केयर क्रोज। तो ये पूरा देख सकते हो यहाँ, ये पूरा माउंटेन है, एंड दीज आर ऑल योर पाइन फॉरेस्ट। ये पूरा ऊपर पाइन फॉरेस्ट है, एंड आई एम नॉट श्योर इफ़ यू गाइस कैन सी द गोट्स देयर। वहाँ पे छोटे छोटे गोट्स हैं, शायद कैप्चर नहीं हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा दूर लग रहा होगा, बट ये पूरा फॉरेस्ट है यहाँ पे, और इस साइड भी पूरा फॉरेस्ट एरिया है। वाइल्ड लाइफ की बात करूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है, जिस रीजन में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली हैं आपके डियर्स भी हैं यहाँ पे आपके हेयर HARE जो जिसको जंगली खरगोश बोलते हैं वो भी होते हैं यहाँ पे कक्कड़ बोलते हैं जो जो डियर जो प्रजाति जो डियर की है यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड एज कक्कड़ से। तो उनकी एंड आउट ऑफ ऑल दी स्मॉल एनिमल्स जो रहते ही हैं, ठीक है, उनके अलावा जो यहाँ पे जो मेजर जो एनिमल है दैट इज़ माउंटेन लेपर्ड। तो माउंटेन लेपर्ड भी यहाँ पे कई बार निकल आते हैं, और वो रात को विलेज में जाके मतलब दे ट्राई टू टेक अवे स्मॉल एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड ऑल, क्योंकि जो बफेलोज और जो काउज वगैरह जो यहाँ बंधी रहती हैं, दे आर ऑल टाइड अप, सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर देम टू ड्रैग देम अलॉन्ग बिकॉज दे आर ऑल टाइड विद देयर हुक्स एंड ऑल। तो वो बेसिकली हंट करते हैं जो डॉग्स वगैरह को, और फिर उनको लेके जाते हैं यहाँ से। तो मेक श्योर कि मतलब इफ़ यू आर स्टेपिंग आउटसाइड ड्यूरिंग द लेट आवर्स, तो यू कीप योर आइज़ ओपन। ये पूरा एक टाइप का लहसुन, दिस इज़ ऑल गार्लिक फैमिली प्लांट, और ये पूरा आयुर्वेदिक है, और ये पूरा पतंजलि, यहाँ से पतंजलि जो भी होगा या जो भी आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं उनको सप्लाई होता है पूरा। कॉलीफ्लावर्स। और ये पूरा कॉलीफ्लावर्स है यहाँ पे, और ये पूरा वीट है। तो ये पूरा वीट सीज़न है अभी, तो जितनी चारों तरफ देखोगे सारी वीट ही वीट लगी हुई है। तो 2 से ढाई महीने का टाइम है, अभी 3 महीने का टाइम है, तो ये पूरा फसल तैयार हो जाएगी। फसल कट के फिर यहाँ पे बंदे खुद आते हैं लेने के लिए फ्रॉम पंजाब एंड ऑल, दे बाय द एग्रीकल्चर क्रॉप्स डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स हेयर। तो वहाँ से आए हैं, तो अभी वॉक करते हुए हमें करीब अराउंड 2-2.5 किलोमीटर हो चुका है, एंड वी आर स्टिल हाइकिंग। तो पापा वाइफ को कुछ समझा रहे हैं, क्योंकि वाइफ जो है शी इज़ न्यू टू दिस ऑल दिस एरिया, शी इज़ कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हियर, सो ही इज़ मेकिंग हर अंडरस्टैंड कि क्या है क्या नहीं है। तो ये जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट आप देख रहे हो, सो ये है पूरा ऋषि मार्कंडेश्वर का यहाँ पूरा धाम है। दिस इज़ अ टूरिस्ट प्लेस, एंड दीज इस्टेब्लिशमेंट्स दे हैव ग्रोन अप इन द लास्ट 5 ईयर्स। उससे पहले यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, बट एज़ हिमाचल गवर्नमेंट प्रमोटेड एंड ऑल, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। और पापा माय फादर वाज इवन टेलिंग कि देयर हैज़ बीन न्यू engagements in the श्री मार्कंडेश्वर premises, so which I haven't even seen because कोरोना का टाइम था, फिर ट्रैवलिंग नहीं हो पाया, then I went abroad
फिर पिछले साल मैं आया था हिमाचल, बट अगेन आई डिडंट गॉट अ चांस टू कम डाउन हियर बिकॉज ऑफ पैंडमिक सिचुएशन दैट वाज स्टिल गोइंग ऑन. सो नाउ द टाइम इज़ राइट. So I'm going and he's telling her something. अच्छा ऐसे घुमा के वो बंदला में, बंदला से नीचे बिलासपुर है। ये जो बस आती है ना, So my father knows everything in and out here. बन रहा, काम चल रहा है। तो यहाँ पे पूरा मतलब प्रॉपर रहने के लिए पूरा स्टे वगैरह बनाया गया है, as my father was telling. So it will be quite good to explore the new engagements that have been developed in Markandeshwar premises. तो चलते हैं, फटाफट पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं बचा है. So goodbye for us. You have to say it, baby. And us in Texas, you wanna try, baby. I know you can, I know your heart, and you will figure out you love me now, 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 now. You know I gotta leave you alone. हम लोग पहुँच गए हैं श्री मार्कंडेश्वर. तो हम लोग पहुँच गए हैं श्री मार्कंडेश्वर धाम. ये रहा श्री मार्कंडेश्वर धाम और ये श्री मार्कंडेश्वर का टेम्पल हो रहा. पहले दर्शन कर लेते हैं श्री मार्कंडेश्वर जी के. तो पहले हमने सोचा कि पूरा प्रोमाइस का एक बार चक्कर लगा लेते हैं, क्या क्या नया डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे. ये क्या चीज़ है बाबा? कैसी? गेस्ट हाउस. ये हाँ, गेस्ट हाउस, होटल या ऐसे Guest कुछ house. होगा ये. पूरा गेस्ट हाउस है। 2 मंजिल तो नीचे अंडरग्राउंड है, ये तीसरी मंजिल है। आ जाओ, कम कम। तो ये पूरा बेसिकली टूरिस्ट लोगों के लिए बनाया गया है जो कि यहाँ पे आके मतलब स्टे कर सकते हैं. और ये सारा 3 फ्लोर का है एंड यू कैन सी इट्स क्वाइट बिग एंड दैट इज़ द एंट्रेंस ऑफ श्री मार्कंडेश्वर. और यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं, यहाँ से आप खरीद सकते हो सामान वगैरह ऑफरिंग्स के लिए. और ये रहा पूरा कंपाउंड एंड दैट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट. ये पहले नहीं था यहाँ पे. और यहाँ पे अंदर पार्किंग का भी, आई कैन सी द कार्स हियर, सो इट्स वंडरफुल. और सामने आपका मेडिसिन का भी है. ऊपर चलते हैं. ये हम एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं. मतलब हम लोग पहले से ही अंदर, क्योंकि हम लोग बैक साइड से आए हैं, तो हम लोग अभी फ्रंट, मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्रंट से कैसा है. ये रहा पूरा आपका फ्रंट साइड. यहाँ से आपकी पार्किंग वगैरह है. यहाँ से जा सकते, ये पूरा मल्टी लेयर पार्किंग है. नीचे हाँ 3 लेयर पार्किंग. हाँ 3 फ्लोर तक, 3 फ्लोर इकट्ठे। हाँ 3 फ्लोर पार्किंग. बटी कृष्ण तीर्थ स्थल, यहाँ से दूरियां बताई गई है ना। इधर भी है, इस साइड शनि मंदिर वगैरह है. ये आ गई। तो यहाँ पे होम स्टेज वगैरह भी हैं, तो आप यहाँ रह सकते हो इफ़ यू डोंट हैव एनी जुगाड़. तो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ. तो अभी बस मेरे फादर ने बताया कि यहाँ पे जो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस भी आती है, ये उसी के लिए पूरा बना हुआ है. और ये वहाँ जाती है, वहाँ तक घूम के वहाँ से वापस हो जाती है. तो एनी सवेरे 9 बजे रूट. और ये सवेरे चली जाती है 7 बजे। अच्छा, मतलब जो भी बिलासपुर से शिमला जा रही होगी या शिमला से बिलासपुर आ रही होगी, वो सारी बसेस यहाँ पे आगे रुक जाएंगी. सारी नहीं, एक ही बस आती है। अच्छा, एक ही आती है. ओके. एक आती है, हाँ, एक बस आती है और बिलासपुर से तो 2 आती है। अच्छा, बट तभी ठीक है. यहाँ पर ये सारा बस स्टैंड है. कितना बढ़िया। चलो, डरती। यहाँ पे जब जब बैसाखी होती है तब एक बहुत बड़ा मेला भी तो लगता है यहाँ पर. हाँ, बैसाखी को 13 अप्रैल। हाँ 13 अप्रैल को यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं. वो पंजाब, हाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक आते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, ये सारे आते हैं यहाँ पे. यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है बैसाखी का. 3 दिन चलता है, कुश्ती होती है तीसरे दिन। हाँ 3 दिन का मेला चलता है यहाँ पे. 3 डे फेयर इन द मंथ ऑफ मार्च में ना. जिसमें नहीं, अप्रैल
अप्रैल में जब बैसाखी होती है। बैसाखी को होता है और हरियाणा और यूपी और सारे पहलवान आके कुश्तियाँ होती है यहाँ पर। हाँ, तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है जो कि पहले नहीं था। तो ये पूरा गेस्ट हाउस देखो कितना बड़ा बना है, और ये पूरा बस स्टैंड भी पूरा नया बना है। तो इट्स क्वाइट गुड, एंड दिस ऑल डेवलपमेंट हैज़ बीन डन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी। तो बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम करवाया है यहाँ पे, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ दिस प्लेस एंड ऑल, इट्स वेरी गुड। यहाँ पर चलो अभी इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ अभी बताना बाकी है। तो एक यहाँ मैं एक ओपनिंग में लेके जाता हूँ जहाँ पे मैं बता रहा था कि जैसे जिनको स्किन प्रॉब्लम्स एंड ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स विल बी क्योर्ड इफ़ यू टेक अ होली डिप। सो दिस इज़ वन सच एरिया। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है चर्म रोग नाशक जल। तो दिस इज़ ऑल होली वाटर। इफ़ यू टेक अ डिप इन दिस वन, सो एनी ऑफ योर स्किन प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट विल बी क्योर्ड। नहा सकते हैं। बट जब आप नहा रहे हो तो यहाँ पे मेक श्योर करो कि आप अपने कपड़े वगैरह ना धो, क्योंकि इससे पानी पूरा गंदा हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल नेचुरल वाटर एंड दिस वाटर हैज़ ऑल द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ टू क्योर योर स्किन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे वो नहाने का एरिया है, और ये इधर देखो यहाँ पे पूरा हवन वगैरह चल रहा है। ये पूरा बड़ा मंदिर है, यहाँ पे पूरा कंपाउंड है, ये पूरा आश्रम है यहाँ पे भी आप रह सकते हो। अगर आपके पास खुद के अगर अपने रहने का पूरा जुगाड़ है तो आप यहाँ पे भी रह सकते हो अपना कंबल वम्बल ला के। दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू स्टे। ओ बेबी डॉग, एक और कुत्ता है यहाँ पे। तो ये श्री का मार्कंडेश्वर का मंदिर है। वापस इस जगह आ गए हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे नहाने के लिए है। दिस इज़ फॉर मेन। अभी यहाँ से हम नीचे जाएंगे। मैं अभी कपड़े वगैरह खोलूँगा तब उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे यहाँ पे नहाने के लिए। और ये देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा नेचुरल वाटर है। और ये जो ऊपर जो स्टैचू है श्री मार्कंडेश्वर के, तो मैं आपको दिखाऊँगा, उनके नीचे से ये पूरा फ्लो किया आता है। दिस इज़ ऑल नेचुरल वाटर। और ये पता नहीं कितने सालों से आ रहा है, यहाँ पे कभी पानी की कमी नहीं होती है। डे नाइट ऐसे चल रहा है ये। डे नाइट। तो मैं नहाने की तैयारी करूँगा। मैं अपने बैग में कपड़े वपड़े सब लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जाऊँगा नहाने। तो मेरी वाइफ जा रही है पहले नहाने के लिए। तो ये है आपका महिला स्नान गृह इसमें है। तो दिस इज़ ओनली फॉर लेडीज़। शी इज़ इन, तो आई विल वेट फॉर हर आउटसाइड व्हाइल आई टेक केयर ऑफ अवर 2-year-old किड विद माय फादर। तो वो मेरे पापा हैं और ये रहा हमारा सामान। तो मैं अभी कुछ देर रखवाली करूँगा सामान की, एंड देन व्हेन शी विल कम बैक देन आई विल गो फॉर अ बाथ। नाउ आई एम गोइंग। यहाँ इसी को छींटे छाटे मार फटाफट खोल के चलते हैं। वहाँ पे मार सकते थे। हाँ, इसको भी नहला दो, इसको छींटे छाटे मार दो इस पर। भाई मैंने तो स्नान ले लिया। इतना सही पानी था, मगर मेरे को लगा कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि लेकिन बहुत सही पानी था। बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगा। तो हमने नहा धो के पूजा वगैरह सब कर लिए और हम लोग फ्री हो चुके हैं घर जाने के लिए। तो रियांशी को कुछ चाहिए खाने के लिए। क्या चाहिए इसको खाने के लिए? रियांशी क्या चाहिए? कटर पकौड़े? कटर? नमकीन होता ना। चल उसको शॉपिंग कर लेते हैं यहाँ से, थोड़ा मोटा देख लेते हैं अगर कुछ खिलौने विलौने रियांशी के लिए लेने कि नहीं लेने, और फिर हम घर जाएंगे। और यहाँ से आप होली वाटर वगैरह भी कलेक्ट कर सकते हो। जो कैंस है ना, आपके कैंस वगैरह में आप होली वाटर कलेक्ट कर सकते हो।
I hope guys you liked today's vlog, and soon I will meet you in the next new vlog. Until then, please like, share and subscribe my channel. Peace out. Take care.